ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਡ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਕਰੰਟ। ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਸਰਕਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ and circuit. So electric current and electric circuit. So ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ 에ਅਰ ਕਰੰਟ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਟੂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ 에ਅਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 에ਅਰ ਕਰੰਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ ਐਨੀ ਰਿਵਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਚਾਰਜ, ਸੋ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਐਨੀ ਸਰਕਟ, ਇਨ ਐਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦੈਟ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਕਿਊਪਾਈ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਮਾਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਮੈਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਚਾਰਜ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਏਬਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਏਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਨੀ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹਨ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਚ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਸੋ ਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ। ਸੋ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਚਾਰਜਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਲਬ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਆਫ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਿਚ। ਹੁਣ ਸਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਵਿਚ। ਸਵਿਚ ਹੈ ਇਟ ਮੇਕਸ ਦ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ, ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸੈਲ ਐਂਡ ਦ ਬਲਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਿਚ ਕੀ ਹੈ,
So it makes the conducting link between the cell या फिर बैटरी, between the cell and the bulb, because glow कौन कर रहा है इस केस दे विच, that is bulb। मतलब मैं स्विच ਨੂੰ डिफाइन ਕੀਤਾ है in terms of, मतलब in case of ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, it makes the conducting link between the cell and the bulb so that ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਸੈਲ, मतलब ਸੈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਬ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਬਲਬ ਗਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ that is ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलैक्ट्रिक सर्किट आप किनू बोलेंगे, द कंटीन्यूस मीनस विच कोई ब्रेक ना हो, द कंटीन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय द इलैक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलैक्ट्रिक सर्किट। मतलब जो करंट है वो एक पाथ फॉलो कर रहा है, किदा दा पाथ फॉलो कर रहा है, जो कंटीन्यूस है, विच कोई ब्रेक्स नहीं आउंदियां, प्लस क्लोज्ड पाथ है, मतलब कितों भी खुला नहीं है। सो एक जगह तो शुरू होया उत्थे जाके मतलब की है पूरा कंप्लीट हो रहा है, क्लोज्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड इलैक्ट्रिक सर्किट। सो इट इज़ द कंटीन्यूस एंड क्लोज्ड path through which the electric current flows is called an electric circuit। सो ਇਹਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ सर्किट मीनस द कंटीन्यूस एंड क्लोज पाथ जिहदे थ्रू की है इलैक्ट्रिक करंट अपना की है फ्लो कर रहा है, उसनों आपां की उस पाथ नूं की नाम दिंदे हां, इलैक्ट्रिक सर्किट। हुण आपां आइए इलैक्ट्रिक करंट ते। सो करंट की है, आपां इहनूं किस तरह एक्सप्रैस कर सकते हैं। नाउ इलैक्ट्रिक करंट सो इलैक्ट्रिक करंट बेसिकली की है, इलैक्ट्रिक करंट नूं आपां एक्सप्रैस करते हैं एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सैक्शन। हुण क्रॉस सैक्शन की हो सकता है, पहले तो अगर अपने कोई सिलेंड्रिकल टाइप कंडक्टर है, मीनस इस तरह का कोई कंडक्टर है, सो ए दी एक्सिस होएगी। सो अगर विचों एक कट बिल्कुल नॉर्मल मीनस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एक कट लगा लिया जाए, दैन जो अपने को एरिया एक्सपोज होएगा या जो सरफेस होएगी मीनस ए वाली चीज़, इनू आपां की बोलांगे क्रॉस सैक्शनल एरिया। सो पूरे चैप्टर दे विच जिथे भी मैं गल करांगी, सो क्रॉस सैक्शनल एरिया दी, सो उहदा की मतलब होएगा कि जिहड़ा एरिया की है या जिहड़ी सरफेस की है एक्सपोज्ड हो रही है आपां नूं, सो उस सरफेस नूं आपां की बोल रहे हां क्रॉस सैक्शनल एरिया, क्रॉस सैक्शनल एरिया। सो इलैक्ट्रिक करंट की है, इलैक्ट्रिक करंट नूं आपां एक्सप्रैस करदे हां एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब जिमें अगर आप सैकेंड्स दे विच ऐसे यूनिट्स की गल करिए कि एक सैकेंड दे विचों किसी क्रॉस सैक्शनल एरिया के थ्रू किन्ने अमाउंट ऑफ मतलब किन्ने कूलम चार्ज, सो मैं दसांगी कूलम की है यूनिट ऑफ चार्ज है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उन्होंने आप की बोलते हैं इलैक्ट्रिक करंट। सो इट इज़ एक्सप्रैस्ड as the amount of charge flowing through any cross section of the conductor पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम सेम चीज़ है। यूनिट मतलब एक, सो मीनस एक सेकेंड दे विच
सो ये है इलेक्ट्रिक करंट. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम. एक सेकेंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ डायरेक्शन की गल करिए कि इलैक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आप की लैंने हाँ. सो इनीशियली जो कंडक्टर्स के केस के आप की है फ्लो ऑफ, जिथे मैं बोलिया सी चार्ज. सो फ्लो ऑफ चार्ज की जगह आप जनरली फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इलैक्ट्रिक करंट. मतलब जो भी की है किसी कंडक्टर के मटीरियल की है फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हो रहा है, दैन आप की बोलते हाँ इट कॉन्स्टिट्यूट्स इलैक्ट्रिक करंट. लेकिन जब इलैक्ट्रिसिटी मतलब काफ़ी साल पहले जब इलैक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, दैन उस टाइम पर की है इलैक्ट्रॉन्स बारे किसी को कोई नॉलेज नहीं सी. दैन उस टाइम की सोचा गया कि जो इलैक्ट्रिसिटी है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मतलब उदों बिकॉज इलैक्ट्रॉन्स बारे किसी को कोई नॉलेज नहीं सी, उदों ये सोचा गया, ये मान लिया गया कि इलैक्ट्रिसिटी मीनस इलैक्ट्रिक करंट उदों होएगा जो की है कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है. सो उहदे अकॉर्डिंगली उहदी डायरेक्शन भी वही रखी गई कि जिस डायरेक्शन दे विच पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन की होएगी इलैक्ट्रिक करंट दी होएगी. सो कन्वेंशनली आप जी डायरेक्शन लैने हाँ इलैक्ट्रिक करंट की, वो की है बाय कन्वेंशन या फिर कन्वेंशनली the direction of electric current is taken opposite to the direction of electrons, so which is a positive charge, sorry negative charge, negative charge. सो मतलब जो इलैक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हुई, इलैक्ट्रिसिटी बारे गल हुई, उदों उन्होंने की किया कि इलैक्ट्रिसिटी दे विच जो आप करंट की गल कर रहे हैं इलैक्ट्रिक करंट, उसकी डायरेक्शन की होएगी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की. मतलब जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वही डायरेक्शन की होएगी इलैक्ट्रिक करंट की. सो उस तो बाद की है हुण बिकॉज इलैक्ट्रॉन्स की इन्वेंशन तो बाद हुण आप बाय कन्वेंशन की लिखते हाँ द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट की है इज़ टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स विच इज़ अ नेगेटिव चार्ज. बिकॉज वो डायरेक्शन किदे बराबर है, मतलब किदे नाल बिल्कुल सेम है पॉजिटिव चार्ज के नाल, दैन ऑपोजिट किदे होएगी टू द नेगेटिव चार्ज. सो आप जब भी सर्किट ड्रॉ करांगे उहदे विच की है जो डायरेक्शन शो करांगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स शो करांगे हमेशा. सो ये है बाय कन्वेंशन, ये होगी ये डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट. और इस तो बाद आप मैथमैटिकली देखिए कि इलैक्ट्रिक करंट की है. सो इलैक्ट्रिक करंट जिसकी मैं डेफिनेशन दी थी, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम. सो अगर अपने को टोटल नेट चार्ज है Q, नेट चार्ज कैपिटल Q ले रहे हैं हम, और इन्ना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू किन्ने टाइम दे विच, T टाइम दे विच. दैन आप करंट नू किस तरह लिख सकते हैं, इलैक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू करंट नू आप की है कैपिटल I दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं. इलैक्ट्रिक करंट I विल बी इक्वल टू, दैन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं की लिखांगी नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम. मीनस अगर उन्हें यूनिट बनाना है दैन आप की उन्होंने T दे नाल डिवाइड करांगे. सो I इज़ इक्वल टू Q बाय T. हुण आप गल करिए इन्हां दे यूनिट्स की, इधर है चार्ज. सो T तो आप की है टाइम इज़ जनरली SI दे विच आप सेकेंड्स दे विच ही लवांगे. Q की है चार्ज. सो SI यूनिट ऑफ चार्ज वो हुंदा है कूलम. कूलम और इन्हों आप लिखते हैं कैपिटल C दे नाल. सो Q जो इत्थे लिखा है दैट इज़ चार्ज. सो SI यूनिट ऑफ चार्ज की है कूलम है. और तुहानूं ये भी पता होगा कि एक इलैक्ट्रॉन, सो चार्ज ऑफ वन इलैक्ट्रॉन कितना हुंदा है. सो ये मैं इलैक्ट्रॉन लिख रही हूँ, चार्ज ऑफ वन इलैक्ट्रॉन that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम्स. सो अगर आप देखना होवे कि एक कूलम चार्ज किन्ने इलैक्ट्रॉन्स कोल होवेगा.
ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੂਲਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सेम ही चीज़ लिखी है मैं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਕੂਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ 1.6 × 10⁻⁻19 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਕੂਲਮ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਚਾਰਜ ਆਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ 1 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 1.619 और नाल की आएगा मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, बिकॉज आप लिखा सी चार्ज ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन, नाल की आएंगे इन्ने इलैक्ट्रॉन्स। सो इनू कैलकुलेट करन ते 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू सो 0.10/16 2 5 10 2 8 16, देन आ जो वैल्यू है सिंपली ये ऊपर जाएगी और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर इतने पावर नेगेटिव है देन ऊपर जाके पावर की है चेंज हो जाएगी। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऊपर जाके पार हो गई +19 5 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ 0.50 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ 8 6 48 ओके 0.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1 कूलम इज इक्वल टू 6। अगर ये पॉइंट भी मैं की है ये एडजस्ट करना हो दैन किस तरह होएगा, नीचे 10 एक 10 दे नाल एक 10 कैंसल, सो 6 × 10⁻18 इलैक्ट्रॉन्स। सो ये अपने को वैल्यू आई है कि एक कूलम चार्ज किन्ने इलैक्ट्रॉन्स दे कोल डिस्ट्रीब्यूटेड हुंदा है। सो मतलब एक कूलम दी इन्नी वैल्यू है मीनस इन्ने इलैक्ट्रॉन दे कोल की है एक कूलम चार्ज हुंदा है। सो एक इलैक्ट्रॉन दे कोल एक कल्ले इलैक्ट्रॉन दे कोल की है बहुत 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 छोटा की है वेरी माइन्यूट वैल्यू, मतलब वो थोड़ा जिहा ही फ्रैक्शन हुंदा है एक कूलम का। सो ये सी कूलम बारे। इस तो बाद आप हुण इहदी यूनिट की गल करिए मीनस इलैक्ट्रिक करंट की यूनिट की गल करिए, इलैक्ट्रिक करंट का यूनिट। सो इत्थे वापस आने हुण, सो इहदे यूनिट की गल कर चुके हैं हुण। आई यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट दैट इज सिंपली नेम्ड आफ्टर सो एक फ्रेंच साइंटिस्ट सी। सो उन्हां दे नाम ते की है इहदा यूनिट है। सो साइंटिस्ट दा नाम सी एंड्रे मैरी एम्पियर। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट फ्रेंच साइंटिस्ट। सो इन्हां दे नाम ते की है करंट दा यूनिट है और करंट दा यूनिट की है एम्पियर और उन्होंने आपां कैपिटल ए दे नाल डिनोट करते हैं। सो दिस इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। सो इन्हां दे नाम ते ही की है करंट ऑफ सो यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट एम्पियर पिया है। हुण इत्थे अगर मैं यूनिट्स के टर्म्स लिखना होवे दैन इहदा यूनिट की है एम्पियर, इहदा यूनिट की है कूलम और इहदा टाइम का की है SI दे विच आपां सेकेंड्स लैने हाँ। सो अगर 1 एम्पियर नूं डिफाइन करना होवे सो 1 एम्पियर कदों आएगा जदों ये दोनों की होणगे 1 होणगे। सो सिंपली 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। सो इत्थों आपां की है 1 एम्पियर नूं की है डिफाइन कर सकते हाँ। सो 1 एम्पियर की डेफिनेशन की होएगी सो 1 एम्पियर ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। सो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हाँ कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन होएगी 1 एम्पियर है कि एक्चुअल दे विच करंट है। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सैक्शन इन 1 सेकेंड। मतलब जो 1 सेकेंड दे विच किसी भी क्रॉस सैक्शन एरिया के थ्रू 1 कूलम चार्ज पास कर गया दैन आपां की बोलांगे करंट कितना है 1 एम्पियर है। सो ये सी अबाउट द यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। हुण आपां गल करिए एक स्कीमैटिक डायग्राम दी। इस तो इलावा एक होर चीज़ की इलैक्ट्रिक करंट नूं मेजर करने के लिए की है एक इंस्ट्रूमेंट है। सो टू मेजर द इलैक्ट्रिक करंट एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम की है एम मीटर। एम मीटर MET
METER, ਸੋ ਇੱਥੇ TRE ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, METER। ਸੋ ਐਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਮੀਟਰ। ਪਲੱਸ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਬੈਟਰੀ। ਸੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਪਸ ਲਿੰਕ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਲ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਈਨ ਸਮਾਲ ਲਾਈਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਅਗੇਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ, ਅਗੇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। फिर ज्वाइन किया तीसरे सैल के नाल पॉजिटिव टर्मिनल नैगेटिव टर्मिनल। सो एंड ते अपने को इत्थे की है हमेशा पॉजिटिव नैगेटिव, इस तरह की है बैटरी बनी है। सो इहदे विच की हन 3 सैल्स हैं। उस तो बाद आपां सर्किट दे विच जनरली की है एक स्विच बोल दिंदे हां, या फिर इहनूं प्लग की बोल दिंदे आपां, कैपिटल के। दिस इज द प्लग की या फिर सिंपली स्विच। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਰਚ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਲਬ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲਬ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਐਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਮੀਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ 3 ਸੈਲਸ ਹਨ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਟੂ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਬੈਟਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਐਮਪਲੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਐਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, प्लस तो स्टार्ट होया करंट। सो ये करंट शो किया है, अगेन इस तरह एरो आएगी, फिर ये जो पास होंदा होया इस तरह एरो। दैन अगर इत्थों प्लस स्टार्ट हो रहा है, इधर भी की है आप किस तरह कनैक्ट कर रहे हैं एमीटर नूं। सीरीज़ का की मतलब है, मैं पहले बोलिया सीगा कि आप एमीटर नूं हमेशा सीरीज़ कनैक्ट करते हैं। सीरीज़ मतलब कि एक टर्मिनल मीनस एक पॉइंट की है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੇ, दैट इज़ द सीरीज़। मतलब पूरा की है अपना सर्किट कंप्लीट हो गया, एंड टू एंड जॉइनिंग करती, दैट इज़ कॉल्ड द सीरीज़ कॉम्बीनेशन। सो इत्थों प्लस तो स्टार्ट होए, इत्थे भी प्लस ही आना चाहिए है। सो प्लस फिर माइनस, फिर इसी तरह की है अपना इत्थे तक करंट, फिर वापस। सो प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। सो कन्वेंशनली आप करंट इदा शो करते हैं, लेकिन फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किस तरह होएगा, बिकॉज आपको पता है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी है। फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किदा होंदा है, हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन आप जब भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आप इलैक्ट्रॉन्स के फ्लो नूं नहीं शो करना, आप सिर्फ की है आई मीनस करंट के फ्लो नूं शो करना है। सो ये की अपनी प्रॉपर सर्किट डायग्राम है जिहदे बेसिकली 3-4 चीज़ां मैं मैंशन कीतियां हैं। बैटरी, कॉम्बीनेशन ऑफ सेल्स, एक ही है बल्ब की रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिहदे नाल आपां की है करंट मेजर करते हैं किसी भी सर्किट दे विच कितना करंट फ्लो कर रहा है। की हुण की दे विच एक मैं डॉट शो कीता है, अगर ये डॉट ना होवे इत्थे, इहदा की मतलब है कि जिहड़ा अपना स्विच है या फिर जिहड़ी की है वो खुली है, दैट इज़ ओपन। सो जदों तक ये खुली रहेगी उदों तक की है करंट की है अपना फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज अपना सर्किट की है ब्रेक है, हजे वो मतलब कंप्लीट नहीं होया। जदों आपां की है इत्थे की इंसर्ट कर देवांगे, सो इत्थे मैं की है एक डॉट शो कर रही हाँ। सो अपना हुण इस टाइम सर्किट की है पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उस पॉइंट पे की है अपना की है इत्थे करंट फ्लो करेगा। अगर बाई चांस कि आप इत्थे डॉट ना शो करके एरोज शो कर दईए, सो उहदा की है मतलब बिल्कुल ही गलत मीनिंग निकलेगा कि की इंसर्ट नहीं की हुई लेकिन करंट फ्लो कर रहा है। सो वो सही नहीं है। सो बहुत ध्यान दे नाल सारी सर्किट डायग्राम बनानी है, एरोज शो करने हैं प्रॉपर डायरेक्शन दे विच, प्लस नाल की दा बहुत ध्यान रखना है।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। क्वेश्चन की गिवन है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर। सो अपन वैल्यू किस चीज़ की गिवन है, इलैक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट की वैल्यू कितनी है, ए मीनस एम्पीयर जो यूनिट है करंट का। 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलैक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। सो टाइम कितना गिवन है इतने टी, दैट इज 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज मतलब आप क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सो इस तो पहले आप हुण न्यूमेरिकल जनरल फॉर्मूला देखा सीगा की सी, दैट इज करंट फ्लोइंग through any circuit is equal to charge flowing over the time taken। so यही फॉर्मूला आप देखा। अगर हुण आप Q कैलकुलेट करना है, सो Q नू एक साइड रखिए, T नू उधर ले जाइए। सो Q विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। हुण एक चीज़ होर ध्यान विच रखांगे कि जब आप वैल्यूज़ पुट करनियां हन दैन यूनिट्स की होने चाहिए हन, इको सिस्टम दे विच होने चाहिए हन। मीनस अगर आप SI सिस्टम की गल कर रहे हैं दैन SI सिस्टम दे विच एम्पीयर की है यूनिट ऑफ करंट, लेकिन टाइम दा SI यूनिट की हुंदा है दैट इज सेकंड। सो इनू की है पहले सेकंड्स दे विच कन्वर्ट करना पएगा। सो आपां नू करंट कितना गिवन है, करंट इज 0.5 एम्पीयर, देन टाइम 10 मिनट्स। सो इनू सेकंड्स विच कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, किस तरह करांगे। सो 10 इंटू 1 मिनट दे विच किन्ने सेकंड्स हुंदे हन, 60 सेकंड्स। सो मिनट की जगह मैं सबस्टिट्यूट किया 60 सेकंड्स। तो जनरली आप सिर्फ एस ही लिखते हैं, पूरा सेक लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड्स। अपने को आंसर आया 600 सेकंड्स। हुण आप की है वैल्यू सबस्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज हम दोनों की हैं SI सिस्टम के विच कन्वर्ट हो चुके हैं। सो Q इक्वल टू करंट की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600। सो नाल की आएगा एम्पीयर सेकेंड। ना अपन पता भी है कि जो Q की वैल्यू आएगी किहड़े यूनिट्स दे विच आएगी, बिकॉज Q दा SI सिस्टम की है कूलम। सो अपने को आंसर विच की आएगा कूलम। नाल हुण वैल्यू कितनी आएगी 0.5 इंटू 600। सो पॉइंट हटा के 0, 6 5 30 एंड एक 0 नाल होर, सो 300 नाल यूनिट की आएगा हुण एम्पीयर सेकेंड या फिर कूलम। सो एम्पीयर सेकेंड का भी सेम ही मतलब है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 कूलम। सो चार्ज कितना आ गया अपने को 300 कूलम। सो ये सी अपना न्यूमेरिकल। सो इस फॉर्मूले ने यूज़ करके जो भी रिक्वायर्ड है, हो सकता है तो कोई होर न्यूमेरिकल आवे उहदे विच की होवे, चार्ज गिवन होवे, टाइम गिवन होवे। सो चार्ज अगर तो कूलम्स दे विच गिवन है, टाइम सेकेंड्स दे विच गिवन है, सिंपली आप की करांगे इत्थे दोनों वैल्यूज़ पुट करांगे एंड आप की कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। सो या फिर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि थोनू टाइम प्लस करंट गिवन होएगा और तुसी की है चार्ज कैलकुलेट करना होएगा, देन आप की करांगे इन्हों मल्टीप्लाई करांगे। सो ये फॉर्मूला सी जो थोनू अगे भी की है याद रखना है। इस तो इलावा अगर एक होर यूनिट्स की गल कर रहे सी आपां, सो करंट जनरली की है या तो एम्पीयर्स दे विच मेजर करते हैं आपां। सो जिमें कि लिखा है 0.5 एम्पीयर्स। एम्पीयर तो इलावा की है कुछ होर यूनिट्स भी हैं करंट दे, जिमें कि यूनिट्स एक तो है 1 एम्पीयर, सो या सिंपली एम्पीयर, या कई बार आप की है करंट नू मतलब जिथे किसी सर्किट दे विच बहुत एप्रीशिएबल करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी का करंट नहीं है, देन आप की है एक होर यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ 1 मिली एम्पीयर। सो स्मॉल m फॉर मिली, कैपिटल A फॉर एम्पीयर। और अगर इसका रिलेशन देना होवे विद 1 एम्पीयर दैन 1 मिली एम्पीयर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पीयर। या फिर इसका की मतलब है कि 1/000 एम्पीयर, मतलब एक एम्पीयर का 1000th पार्ट वो की है 1 मिली एम्पीयर। सो ये है कि दूसरा यूनिट। एक होर यूनिट आप यूज़ करते हैं दैट इज़ 1 माइक्रो एम्पीयर। सो माइक्रो के केस दे विच इहदा रिलेशन 1 एम्पीयर दे नाल की है 10⁻⁶ एम्पीयर, या फिर 1/, इत्थे की होणगियां 6 zeros इंटू एम्पीयर। सो एम्पीयर तो इलावा दो होर यूनिट्स की गल की आपां, एक यूनिट की है 1 मिली एम्पीयर और दूसरा यूनिट की है अपना 1 माइक्रो एम्पीयर। सो ये सी सब कुछ करंट के बारे। सो करंट के नाल आपां की है करंट का फॉर्मूला देखा, करंट की डायरेक्शन बारे देखा कि करंट की डायरेक्शन की होंदी है, प्लस उसका की है
यूज़ मतलब आप किस तरह इस फॉर्मूले ਨੂੰ यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ां मतलब अलग अलग वैल्यूज़ या अलग अलग फिजिकल ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। सो इस तो बाद आप बोल रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है दैट मीनस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज क्यों हो रहा है? सो किस चीज़ करके ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹਨ ਉਹ फ्लो कर रहे हैं इनटू सम डायरेक्शन मतलब इन पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्जेस क्यों ਹੁੰਦਾ है। सो अगर आप ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ फ्लो ऑफ वाटर ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। सो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਟਿਊਬ ਹੈ हॉरिजॉन्टल मीनस बिल्कुल सीधी है इस तरह हॉरिजॉन्टल। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਐਸ ਸੱਚ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਐਸ ਸੱਚ। सो उसी तरह की है अगर अपने कोई वायर है कोई कंडक्टर है इसी तरह का सिलेंड्रिकल कंडक्टर है या कुछ भी हॉरिजॉन्टल शेप हॉरिजॉन्टली आप प्लेस किया है वो भी की है एज सच तक की है कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। सो हम वाटर के केस की हो सकता है कि अगर आप एक एंड ਨੂੰ कुछ हाइट से रखिए और उत्थे वाटर टैंक के नाल ਉਹਨੂੰ अटैच करिए। सो कुछ हाइट से अपने कोल एक वाटर टैंक है उत्थे आप ਉਹਨੂੰ अटैच किया एक टर्मिनल ਨੂੰ दैन उत्थे की है ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पाइप। दैन उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ वाटर फ्लो करता है फ्रॉम द अपर एंड टू द लोअर एंड मीनस उत्थे की रिक्वायरमेंट सी प्रैशर डिफरेंस चाहिए सीगा सो दैट कि वाटर की है उपरों नीचे तक की है फ्लो कर सके। उसी तरह हुण फ्लो ऑफ चार्जेस के केस दे विच की हुंदा है कि कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट की हो सकती है ये की है ग्रैविटी कोई रोल नहीं प्ले कर रही जिस तरह आप वाटर के केस दे विच गल की। लेकिन फ्लो ऑफ चार्जेस दे विच ग्रैविटी का की है कोई रोल नहीं है। ये भी की है आपां नूं एक डिफरेंस चाहिए हुंदा है प्रैशर डिफरेंस। और इन केस ऑफ इलैक्ट्रिक करंट आपां उहनूं की बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलैक्ट्रिक करंट नूं मतलब चार्जेस नूं फ्लो करवाउण दे लई या फिर इलैक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन दे लई की है एक क्वांटिटी है उन्होंने आप की लैके चलते हाँ दैट इज़ द इलैक्ट्रिक डिफरेंस। मतलब जिवें आप बोलते हैं प्रैशर डिफरेंस। सो प्रैशर डिफरेंस होना चाहिए है फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। उसी तरह की है इस केस दे विच भी की है अपने को एक डिफरेंस होना चाहिए है। सो डिफरेंस नूं आप इलैक्ट्रिकल टर्म्स दे विच की बोल रहे हैं इलैक्ट्रिकल प्रैशर डिफरेंस। सो उन्होंने आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो हुण पोटेंशियल डिफरेंस की है जिवें कि मैं दस्सिया कि आप कोई सैल यूज़ कर रहे हैं सैल हो सकता है या बैटरी हो सकती है मीनस आप कॉम्बीनेशन ऑफ सेल्स लिया। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਸੋ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। सो अगर आप कोई करंट नहीं भी ड्रॉ कर रहे हैं उदों भी की है अपने को की होएगा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। और क्यों हो रहा है बिकॉज उदों की है सेल दे विच कुछ कैमिकल एक्टिविटी हो रही है। सो जदों आप सेल नूं या बैटरी नूं की है मतलब जिहदे विच पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो चुका है किसी सर्किट दे विच इंप्लाय करते हैं दैन उहदे नाल की है जिहड़ा कोई कंडक्टिंग एलीमेंट आप लगाया है मीनस कोई वायर हो सकती है या फिर कोई बल्ब भी हो सकता है। सो उहदे नाल की है आह वाला पोटेंशियल डिफरेंस करवाता है फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब सब तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होया अपॉन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल दैन वो इंड्यूस करवाएगा फ्लो ऑफ चार्जेस इन एनी इलैक्ट्रिकल अप्लायंस जो आप जोड़िया होया है सर्किट दे विच दैन उहदे नाल की है फ्लो ऑफ करंट अपना पॉसिबल हुंदा है। सो एक पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इलैक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट दे विच कदों फ्लो करेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस की आपां हुण बाकी दी जो गलबात है और भी ये भी की है काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आएंगे। सो फॉर्मूलाज नूं आपां किस तरह यूज़ करांगे टू कैलकुलेट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। सो आपां अगले चैप्टर दे विच करांगे अगले लेक्चर दे विच करांगे। अज दे लई इन्ना ही। सो अज दे लई आपां देखिया कि करंट की है। सो करंट दे यूनिट्स की गल कीती करंट दे रिलेटेड आपां एक्सप्रैशन पढ़िया उहदे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कीता। सो पोटेंशियल डिफरेंस की जो बाकी दी गलबात है सो जो मेन इहदा फॉर्मूला और इहदी डेफिनेशन वो आपां अगले लेक्चर दे विच करांगे। अज दे लई इन्ना ही। थैंक यू।